حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ حضور، بعض اوقات ہم جتنی مرضی عبادات کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ سارے معاملات کرنے کے باوجود بھی جو ہے ہمیں غم جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ غم ہمیں کیوں جو ہے وہ جکڑ لیتے ہیں، ہم غموں سے نہیں نکلتے؟ تو حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، اس کا نفس اس سے گناہ کرواتا ہے، تو اس وقت اسے وارننگ دیتی ہے، اسے اس گناہ سے روکتی ہے، جسے ضمیر کی آواز بھی کہتے ہیں، ملامت کہتے ہیں۔ اس گناہ کرنے کے بعد انسان کو خود بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے صحیح نہیں کیا، میں نے غلط کیا، مجھ سے برائی سرزد ہو گئی ہے۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ روح کے منع کرنے کے باوجود، اس وارننگ کے ملنے کے باوجود نفس کو گناہ کرتا ہے، اور اس گناہ کو کرنے کے بعد اس گناہ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن جب روح پھر نفس کی طرف دیکھتی ہے تو وہاں کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ بالکل مطمئن بیٹھا ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو روح جب اپنے ارد گرد دیکھتی ہے تو گناہوں کے وہی گناہ جو اس سے سرزد ہوئے، ان کے بادل جو ہیں وہ روح کے اوپر جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان گناہوں کے ہجوم کی وجہ سے، ان کے لحاف کی وجہ سے جو اوپر چھایا ہوا ہے تسلط جو ہے روح کے اوپر، اس تسلط کی وجہ سے روح جو ہے وہ کمزور اور لاغر ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ جو گناہ سرزد ہوئے وہ غموں کی صورت میں انسان کو گھیر لیتے ہیں، اور وہ انجانے غم جو ہیں وہ وہی گناہ ہوئے ہوتے ہیں جو انسان نے ماضی میں کیے ہوں، یا اس سے کوئی غلطیاں ایسی سرزد ہو گئی، انسان پھر ان کی گناہوں کی سختیوں میں جو ہے، اس کی سختیاں جو ہے وہ غم کی شکل میں اس کو ملتی ہیں۔ تو یہ جو انجانے غم ہیں، ان کے کوئی نہ کوئی اسباب ضرور ہوتے ہیں، پریشانیاں، مشکلات۔ در حقیقت وہ انسان کو اس دنیا کے اندر ہی جو ہے اس کا ازالہ جو ہے، وہ دنیا بھی اس کو، اس کے دنیا کے اندر رہ کر اس کو اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے، اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا۔ تو در حقیقت وہ گناہ جو انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، انسان اس کو اپنے حافظے میں بھول جاتا ہے، مگر وہ گناہ جس سے سرزد ہوا، گناہ اس شخص کو نہیں بھولتا، اور وہ گناہ پھر اسی انسان کے تعاقب میں ہوتا ہے۔ تو پھر وہ انجانے غم بن کے وہ گناہ جو ہے وہ انسان کا پیچھا کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ انجانے غم جن کی سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں اتنے غم کیوں ملے، تو در حقیقت وہ انسان سے کہیں نہ کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، کسی کے بارے میں غیر ارادی طور پر جو ہے آپ کو حسد پیدا ہو جاتا ہے اپنے دل کے اندر، کسی انسان کے لیے بغض پیدا ہو جاتا ہے، کہیں پہ آپ کے پاس صاحب استعداد ہوتے ہوئے بھی کسی سائل کو آپ نہیں دیتے، اپنا جو اپنی استعداد ہے اس کے ہونے کے باوجود بھی آپ اس سائل کی جو ہے وہ خدمت نہیں کرتے، اس سائل کو، اس سوالی کو جو ہے آپ کی وجہ سے اگر اس کی مشکل رفع ہوتی ہے تو آپ جان بوجھ کر جو ہے اس کو کچھ دیتے نہیں، اس کی کچھ خدمت نہیں کرتے، تو وہ چیز آپ کو بخیلی میں لے جاتی ہے۔ تو کئی ایسے گناہ ہیں جو غیر شعوری طور پر بھی، جن کا انسان کو شعور نہیں ہوتا، وہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے گناہ ہیں جو شعوری طور پر بھی انسان ان گناہوں کو کر رہا ہوتا ہے۔ تو در حقیقت وہ غم جو غیر شعوری طور پر، جن کی سمجھ انسان کو نہیں ملتی کہ ہمیں یہ غم کیوں ملے، یہ مصیبتیں کیوں ملی،
ही वजह से होती है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि इंसान अगर तुम्हें कोई मुसीबत या मुश्किल पहुंचती है तो वो तेरे ही अपने अमल की वजह से पहुंचती है। और अल्लाह तो ज़ालिम नहीं है कि किसी को गम दे या मुश्किलात दे या किसी के साथ जुल्म या ज़्यादती करे। और अगर कोई खैर पहुंचती है तुम्हें तो वह मेरी ज़ात की तरफ से पहुंचती है, मेरे फजल से पहुंचती है, मेरी रहमत से तुम्हें वो चीज़ मिलती है। और अगर कोई चीज़ जो है वो तुम्हें बुरी मिली तो उसके पीछे तेरी अपनी ही ज़ात का कहीं ना कहीं कोई रोल ज़रूर था। तो इसलिए मैं हज़रत अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या जो है या आपका जो इरशाद है वो आपके खिदमत में ले आया हूँ। हज़रत इशफाक अहमद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने वासफ साहब की खिदमत में भी कुछ अर्सा ज़िंदगी गुजारी। इसी तरह मैंने 70 बुज़ुर्गों की सोहबत अख्तियार की। और जब मैंने इन 70 बुज़ुर्गों की सोहबत में रहने के बाद जब उनकी तालीमात का मगज़ निकाला, जो उन्होंने फरमाया, जो उनकी मुश्तरक एक तालीम थी तसव्वुफ़ की, रूहानियत की, जो दीन की तबलीग थी, तो फिर जब मैंने उस पर गौर व फिक्र किया तो मुझे ये सवाल, इसका जवाब ये मिला कि मैं अपनी ज़िंदगी के रास्ते में खुद ही बैठा हुआ था, मैं अपने रास्ते की दीवार खुद ही बना हुआ था। तो इसलिए आप इन चीज़ों से बचा करें, लोगों की दिल आज़ारियों से, लोगों के साथ तकब्बर वाला रवैया या लहजा बरतने से, किसी को हकीर समझने से, किसी की सूरत, किसी के चेहरे में, किसी की ज़ुबान में, किसी के जिस्म में नुक्स निकालने से। क्योंकि ये सारे नुक्स आप उस बंदे में नहीं निकाल रहे, आप उस माबूद में निकाल रहे हैं जिसने उस बंदे को पैदा किया। तो इन चीज़ों को छोड़ें। अगर आपकी ऐसी कुछ लोगों में आदतें हैं, ऐसी खसलतें हैं, तो इनको तर्क करें। इनका अंजाम अच्छा नहीं है, न दुनिया में और न आखिरत में। और जिन लोगों ने खैर के रास्ते को अपनाया और लोगों को खैर ही जो है वो बांटा या उनके साथ अच्छा सलूक रखा, अच्छा उनके साथ जो है रवैया अपना ऐसा रखा, अपना किरदार ऐसा रखा, तो दर हकीकत जो अमल इंसान के साथ करेगा वो ही अमल जो है वो अल्लाह की तरफ से उस बंदे को मिलेगा। तो ये सारा निज़ाम जो है ये सिर्फ अजर सवाब के ऊपर खड़ा नहीं है, ये बहुत गहरा निज़ाम है जो अल्लाह का निज़ाम है, बहुत गहरा निज़ाम है। ये माँ सिवा रफ़ी अल्लाह के, जो अल्लाह के आरिफीन हैं या औलिया और मुक़र्रबीन हैं, उनके सिवा ज़िंदगी की इस हकीकत, कायनात की इस मार्फत का इदराक किसी को भी नहीं है। क्योंकि किताबें जो हैं वो आपको रहनुमाई तो करती हैं किसी रास्ते की, लेकिन उस रास्ते के अंदर जो छुपे हुए जो इसरार हैं, वो चीज़ें आपको, वो भेद जो है वो हमेशा भेद ही रहते हैं, उन तक आपकी रसाई जो है वो नहीं होती। तो इसलिए इन गुनाहों की ज़िंदगी को, इस बुखीली और जो है कंजूसी की ज़िंदगी को जो है उसको तर्क करें। जिस अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप पे जो नेमतें दी हैं, उन नेमतों में अल्लाह की मखलूक को शामिल रखें। ये अल्लाह की नेमत का शुक्र है। नेमत का शुक्र क्या है कि जो नेमत मिली उसको तकसीम कर दो, यही उस नेमत का शुक्र है। फ़ज़ल का शुक्र ये है, अगर फ़ज़ल मिला तो दूसरों पे फ़ज़ल करो। दूसरों पे फ़ज़ल करना ही दर हकीकत अपने आप पे फ़ज़ल करना है। दूसरों पर रहम करना दर हकीकत अपने आप पर ही रहम करने के मुतराद। तो जो रवैया आप ये चाहते हैं कि आपका रब आपके साथ करे, वही रवैया आप उसकी मखलूक के साथ करें। तो इसलिए वो लोग जो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुदा के लिए उस ज़िंदगी से तौबा करें। ये दौर जो इस वक्त जा रहा है, ये नफ्सा नफ्सी का दौर है। गुनाह अपनी अरूज पर है, फितने अपने अरूज पर है। हर तरफ एक अजीब तरह की दौड़ लगी हुई है, खींचातानी लगी हुई है। और इंसान जिसको तरक्की की ज़िंदगी या तरक्की की राह समझता है, दर हकीकत वो सारा रास्ता पस्ती की जानब जा रहा है।
तरक्की की तरफ नहीं। तरक्की की ज़िंदगी वही है, तरक्की की राह वही है जिसमें इंसान की अपनी फलाह पोशीदा हो। अगर आपने इस दुनिया में बड़ी तरक्की कर ली और आखिरत में आपके पास कुछ भी बाकी नहीं बचा, तो ऐसी तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी कामयाबी का कोई फ़ायदा नहीं। कामयाब वही हैं जिनकी आखिरत कामयाब है। अच्छे दीन वाले लोग वो हैं जिनके इखलाक अच्छे हैं, जिनके अमल अच्छे हैं, जिनका रवैया अच्छा है, जिनकी सोच अच्छी है, जिनका ख्याल अच्छा है। अच्छे लोगों की सोहबत को तलाश करें और अपनी ये बुरी खसलतें अगर हैं उनको तर्क करने की कोशिश करें। ये सारे का सारा आपको जहन्नम की तरफ ये चीज़ें ले जाएंगी, अल्लाह की नाराज़गी की तरफ ये चीज़ें ले जाएंगी, उसकी मोहब्बत की तरफ ये चीज़ें नहीं ले जाएंगी। उन चीज़ों को इख्तियार करें जो अल्लाह की मोहब्बत की तरफ ले जाएंगी, और अल्लाह की मोहब्बत की तरफ ले जाने वाली चीज़ें दर हकीकत इंसान की नजात और फलाह का बाइस बन। तो दूसरी गुजारिश ये है कि वो तमाम लोग जो मेरे चैनल पे आके वीडियो देखते हैं और अभी तक उन्होंने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये प्लेटफार्म ये लगता है कि ये आदमी जो है हमें गलत तालीम दे रहा है दीन की, तो फिर मैं उनसे ये रिक्वेस्ट नहीं करता। और अगर आपका दिल कहता है कि ये आदमी सही रास्ते की तालीम दे रहा है अल्लाह के फजल से, और ये एक अच्छा प्लेटफार्म है रूहानियत का, तसव्वुफ का, दीन के बारे में, तो काइंडली इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने तमाम दोस्तों को भी। ये बहुत बड़ा अजर है। अगर मेरी इस बात से किसी एक इंसान का दिल बदल गया तो शायद मेरा रब रोज़े महशर मुझ पे भी रहम कर दे। कोई एक शख्स अपने मकसूद को पा लिया, जिसने किसी एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया, तो मैं समझूंगा मेरे इस चैनल का हक अदा हो गया। तो काइंडली इस चैनल को जो है वो आगे दोस्तों में भी जो है उसको फॉरवर्ड करें और इस वीडियो को, इस चैनल के लिंक को आगे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, जितनी भी इस ज़माने में बुराइयाँ हैं, शायद मैंने मकसद भी यही था कि लोग जो है वो खैर की तरफ आएँ और इन फितनों को छोड़ें, इन बुराइयों की ज़िंदगियों को छोड़ें। इस ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, तो वही चीज़ इंसान के लिए इनाम बनती है आखिरत में भी, जिन लोगों ने अपने इखलाक को संवारा और अपनी उन बुरी चीज़ों को तर्क किया। अल्लाह सबको सलामत रखे। अल्लाह